চিত্রাঙ্গনা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন। তারই একটা প্রতিচ্ছবি এবং এই কাব্যিক কবিতা মাইকেল বসুন্ধরাতে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি। শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে মহামতি, পাত্র মিত্র সভাসদ আদি বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে। হেনকালে চারিদিকে সহসা হাসিল রোদন নীলাদ মৃদু, তাসহ মিশিয়া হাসিল নুপুর ধরে কিঙ্কিণীর বোল ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনী দল সাথে প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। আলু থালু হায় এবে কবরী বন্ধ, আভরণহীন দেহ হিমানিতে দেখা, কুসুম রতনহীন বল সুশোভিনী লতা, অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির পূর্ণ পদ্ম পর্ণ যেন বীর বাহু শোকে বিবশা রাজ মহিষী। কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে, একটি রতন মরে দিয়াছিল বিধি, কৃপাময় দিন আমি ধুয়েছিল তারে, রক্ষা হেতু তব কাছে রক্ষক কুলমণি, তরুণ কোঠরে রাখে শাবকের মতি পাখি। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে লঙ্কানাথ, কোথা মমমূল রতন দরিদ্র ধন রক্ষণ, রাজগর্ভ তুমি রাজ কুলেশ্বর। কহ কেমন রেখেছ কাঙালিরে আমি রাজা আমার সে ধনে, কহিতে লাগিলা পুরো দশরথী হরি, এ বিলাপ প্রভু এ বিলাপ প্রভু দেবী সাজিকি তোমারে। কহিতে লাগিলা পুরো দশরথী হরি, এ বিলাপ প্রভু দেবী সাজিকি তোমারে। দেশ বৈরী নাসির অনেক পুত্র তব গেছে চলে স্বর্গপুরে, বীর মাতা তুমি বীর কর্ম হত পুত্র হেতু উচিত কি ক্রন্দন, এ বংশ মম উজ্জ্বল জাতি তব পুত্র পরাক্রমে। তবে কেন তুমি কাঁদো ইন্ধনি বানারে তৃতীয় শ্রুণীরে। উত্তর কইলা তবে দশানন বলি, উত্তর কইলা তবে দশানন বলি, উত্তর কইলা চিত্রাঙ্গদা দেবী। দেশ বৈরী নাচে যে সমরে, শুভক্ষণে জন্ম তার ধন্য বলে মানি, হেন বীর প্রসূনের পশু ভাগ্যবতী আমি। কিন্তু ভেবে দেখো নাথ, কোথা লঙ্কা তব কোথা অযোধ্যাপুরী, কিসের কারণে কোন লোভে কহ রাজা এসেছে এদেশে রাখো। শুনেছি সরযুতির বসতি তাহার ক্ষুদ্র নর, তব হীন সিংহাসন আসে যুধিতে কি দাশরথী, বামন হইয়া কি চাকে ধরিতে চাঁদে। তবে দেশ রিপু কেন তারে বল করি, কাকুদর সদা নন্দশীর, কিন্তু তারে প্রহারে যদি কেহ ঊর্ধ্ব ফণা ফণি দংশে প্রহারবে। কে কবে কাল অগ্নি জ্বালিয়া ছাড়ি লঙ্কাপুরে, হায় নাথ নিজ কর্ম ফলে মজারে রাক্ষস কুল মজিরা আপনি। ধন্যবাদ। শেষ সঙ্গীত পরিবেশন করছে উদয় হালদার। ভাষা আমার মায়ের মতো, মায়ের স্তন পান করে যেমন আমি পুষ্ট হয়েছিলাম, ভাষার দ্বারাই আমি তেমন বিস্তার করি।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ে আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ে। মাগো তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ে আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ে। কে বলে তোর দরিদ্র ঘর হৃদয় তোর রতন রাশি, কে বলে তোর দরিদ্র ঘর হৃদয় তোর রতন রাশি। আমি জানি গো তার মূল্য জানি, জানি গো তার মূল্য জানি, পরের পাদর কাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো। মনের আসে দেশ বিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে, মনের আসে দেশ বিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে। তোমার ছেঁড়া কাটা আছে পাতা, ছেঁড়া কাটা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ব আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ব। ধনে মনে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাইবে আমায়, ধনে মনে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাইবে আমায়। ওমা ভয় যে যাবে শিওর বাগে, ভয় যে যাবে শিওর বাগে, কারোর কাছে পারব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো। মাগো তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো আমি তোমায় ছাড়ব না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা যাত্রা শুরু করেছি, আগামী দিনে চলব, এবং বিনা আপনাদের আরেকটু সজাগ করে দিল। বিনা তো আমার মেয়ের মতো, তো এই যে সজাগ, আমরা সবাইকে নিয়ে যদি চলি দূরে এগোতে পারবো এই আশা রাখি। এবারে আমার প্রধান শিবিরারামজি আপনাদের সম্বোধন করতে। எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வளம் மங்காத தமிழருக்கு சங்கீமுடன் 25வது தேசிய தாய்மொழி தினத்தில் நல்ல விதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற காலாச்சட்டம் ரத்னா டில்லிப்பூர் தலைவர் மாசி அவர்களே, இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கு கொண்டிருக்கின்ற ஆரதி மேடம் அவர்களே, இங்கு குழுமி இருக்கின்ற அனைத்து பொதுமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது தமிழ் தாயின் வணக்க
வாழ்க்கை தெரிவித்துக் கொண்டேன். सबका नमस्कार. सभी अगर तमिल में बात करेगा तो सभी ऐसे देखते रहेगा कि समझ नहीं आएगा, फिर भी कुछ बीच बीच में हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ. जो आज विश्व मदर लैंग्वेज के दिन में उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूँ. ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया आना चक्रा का ऑर्गेनाइजर का जो माजी बाबू, आरती मैडम, उपस्थित सबका मैं धन्यवाद देते हुए कन्नड़ क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन उनका चीफ माजी बाबू बाकी सबका मैं धन्यवाद देता हूँ. हम लोग यहाँ पर अपना अपना मातृभाषा का सिलसिला में यहाँ पर इतना प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा लगा. सभी अपना अपना मातृभाषा का खाना खाया. इसमें कोई बड़ा छोटा का बात नहीं. आगे तो चलेंगे ना रास्ता. अभी हम जो है तमिल आदमी, हमारा भाषा एकदम पुराना. बंगाली आदमी बोलेगा मेरा भाषा एकदम पुराना. बाकी सभी स्टेट वाला बोलेगा मेरा एकदम पुराना. हम ये बोलने से मैं कुछ गर्व के साथ मैं बोलना चाहता हूँ. यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन चला था, जो हमारे मासी बाबू शुरू में बोल दिया, दुनिया में जितना भाषा है सबसे पहले भाषा तमिल है. उसके लिए मैं माजी बाबू कभी तो सही बात है. अभी हम लोग हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर जो हमें मोदी जी कहीं भी जाएगा तमिल भाषा के बारे में इतना अच्छा से वो लेकिन कुछ ना कुछ उसका ज्ञान में बोलते रहेगा. तमिल भाषा वो बोलेगा ये सबसे पुराना भाषा तमिल भाषा. अभी सभी हम लोग अपना अपना मातृभाषा का सीखना बहुत जरूरी है. यहाँ पर स्कूल था, सबके भाषा का स्कूल था, धीरे धीरे सब खत्म हो गया. अभी हिंदी इंग्लिश में आता, तमिल था, तेलुगु था, बंगाली था. अभी बंगाली मीडियम धीरे धीरे खत्म होते. तमिल मीडियम तो खत्म हो गया. यहाँ पर बंगाली मीडियम जो अभी हमारा सरदार डिग्री में 1956 से शुरू हुआ था स्कूल, आज 4 बच्चा के लेके खड़ा है. ये साल वो भी खत्म होने वाला. हमारे बहुत दुख लगता है उसमें. वहाँ का पेरेंट्स भी बोलता अभी इसको इंग्लिश मीडियम करो, इंग्लिश मीडियम करो. एडमिनिस्ट्रेशन के लिख के भी दिया, इंग्लिश मीडियम करने के लिए तैयार नहीं है. धीरे धीरे वो स्कूल बंद हो जाता. अभी जो स्थिति ऐसी है वो हिसाब से हम लोग चलना पड़ता. ठीक है, मीडियम खत्म हो गया. अभी हम लोग बच्चा अपना मातृभाषा सिखाना बहुत जरूरी है. अभी हम लोग घर में कम से कम बच्चा के साथ में मातृभाषा में बात करना जरूरी है. अभी ये जो अम्मा ने बोला, एक दुख के साथ बोला, मेरा बच्चा कभी हम बांग्ला में बोलेगा तो वो बोलता है बांग्ला हमको नहीं आता है, इंग्लिश में बात करो. ये अम्मा इंग्लिश बोलता. इसलिए सभी पेरेंट्स बच्चा इंग्लिश पढ़ने दीजिए, हिंदी पढ़ने दीजिए. कम से कम अपना मातृभाषा का बच्चा के सिखाना बहुत जरूरी है. अभी हम लोग स्कूल बंद हो गया तमिल मीडियम का. तमिल कैसा भी बच्चा सिखाना बोल के हमारा तमिल संगम की तरफ से जो यहाँ पर बैठा जो पूरी मैडम अभी 2-3 साल से महीना 2 महीना का छुट्टी के टाइम में वेकेशन में तमिल संगम में क्लास लेता तमिल मीडियम का. कम से कम 30-40 बच्चा आके उसका जो फायदा उठाता, उसके लिए हम तमिल संगम को भी धन्यवाद देता हूँ. इसी तरह हर कम्युनिटी का संगम तो है, सभी दिखता है. गैटा समाज में, तेलुगु समाज में सभी अपना अपना भाषा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना बहुत जरूरी है. जो हमारा तमिल मीडियम तमिल भाषा कब से शुरू हुआ अभी तक किसी के पता नहीं.
18,000 साल पहले एक ऋषि मुनि ने लिखा तमिल में, बड़ा बड़ा मंदिर में अभी नीचे खोद खोद के निकालता, कोई कौन दिन वो डूब गया, वो जगह से भी खोद के निकालता। 18,000 साल के पहले के उसमें लिखा तमिल में, अभी मालूम होता। अभी हम लोग इसलिए उससे पहले जो तमिल लैंग्वेज था वो अभी इतना विश्वास है हम लोग के साथ में, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सभी हम लोग अपना अपना मातृभाषा को आगे लेना जरूरी है। बच्चा लोग उसमें सिखाना जरूरी है। अभी देखिए अगर हम इधर इंग्लिश सीखता, हिंदी सीखता, अभी हम तमिलनाडु में जाएगा तो उसमें जो भी लिखता तमिल में लिखता, वहां जाकर हमारा बच्चा उसका पढ़ना नहीं आता, पूछता इधर उधर क्या लिखा है। इसलिए हम आपसे बार बार मेरा अनुरोध है, कम से कम अपना मातृभाषा सिखाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है अगर हिंदी का दवा मैडम बोलने की तरह दूसरा भाषा का दवा का हमारा भाषा का सिखाना वो नहीं, उसके भी हम सम्मान देना जरूरी है। अभी हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, साथ ही साथ अपना मातृभाषा की सीखो। ये बोलते हुए मैं ये मंच में मुझे बुलाया था उसके लिए हमारे ये जो आर्गनाइजेशन का हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वनकम, वंदे मातरम।